کارکن کو اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ کوئی غیر جمہوری قدم نہیں، جمہوری قدم اپنانا ہے، خان کو ہٹانا ہے۔ خان صاحب کی حکومت آنے کے بعد ہم جمہوریت کی طرف میں آمریت کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن بھی تھی اور عدالتیں بھی ہیں، آپ کے استعفاؤں کے بھی آپ کے پاس تھے، مگر اس کے باوجود آپ نے لانگ مارچ کیوں سلیکٹ کیا؟ آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آمرانہ آمریت کے خلاف مقابلہ کیا، اور وہ حکومتیں جو آمرانہ رویہ اپناتے ہیں ان کے خلاف جدوجہد کی ہے، اور ہم نے ہمیشہ جمہوری آپشنز پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا احتجاج کا حق ایک جمہوری حق ہے، احتجاج کرنا ایک جمہوری رائٹ ہے، اور ہمارا ہم پہلے بھی ملک بھر میں احتجاج چلا رہے تھے، اور اب ہمارا یہ عوامی مارچ ایک ہمارا احتجاج کا ایک مرحلہ ہے۔ جہاں تک آپ نے استعفیٰ کی بات کی، اور اس طریقے سے بہت سے غیر جمہوری آپشنز ہماری نظر میں جو ماضی میں بھی اپنائے گئے تھے۔ خان صاحب نے خود جب دھرنا دیا تو پی ٹی وی پہ حملہ کیا، پارلیمان پہ حملہ کیا۔ ہم اس قسم کے غیر جمہوری آپشنز نہیں اپنا سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا رائے کا سٹانس بڑا واضح رہا ہے، کنسسٹنس رہا ہے پچھلے 3 سالوں کہ ہمارا احتجاج کے ساتھ ساتھ ہمیں پارلیمان میں حکومت کا مقابلہ کرنا چاہیے، ہمیں سینٹ الیکشنز میں حکومت کا مقابلہ کرنا چاہیے، ہمیں بائی الیکشنز میں حکومت کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور اب ہم نے یہ لانگ مارچ شروع کیا ہے۔ ایک طرف حکومت کے خلاف ہے، حکومت کا ناجائز پالیسیز کے خلاف ہے، معاشی پالیسیز کے خلاف ہے، تاریخی مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کے خلاف ہے، دھاندلی زدہ حکومت کے خلاف ہے، لیکن ہم اپنے کارکن کو، اپنے ورکرز کو غیر جمہوری آپشنز کی طرف نہیں لے کے جا رہے ہیں، اور ہم ایک مہم چلا رہے ہیں، ایک رائے ہم پورا ملک میں بنانا چاہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد کا وقت آ گیا ہے۔ جب ہم نے یہ لانگ مارچ کا فیصلہ کیا تو یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے رائے تھا کہ عدم اعتماد کا آپشن حکومت کے خلاف استعمال کرنا چاہیے۔ شکر الحمدللہ ہمارا مارچ شروع ہونے سے پہلے کافی اپوزیشن پارٹیز اس رائے پہ آ چکے ہیں، اور ہمارا کوشش ہے کہ پارلیمان میں جو اتحادی ہے، جو ناراض ممبر ہیں، بلکہ ہر پارلیمان کا جو پارلیمنٹیرین ہے، ہمارا ان سے مطالبہ ہے کہ عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے، اب پارلیمان کا اعتماد اتنا چاہیے۔ ایک بدقسمتی رہی ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ کوئی بھی وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر سکا ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی کئی وزرائے اعلیٰ جو ہے اعظم جو ہیں وہ شامل تھے۔ تو کیا یہ ایک آپ نہیں سمجھتے کہ یہ وہی ایک اگر آپ گرانے جا رہے ہیں تو وہی ایک تسلسل ہے اور اسی کو جاری کر رہے ہیں کہ ایک اور وزیر اعظم کو گھر بھیجا جائے؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک لمبی اور تفصیل کی جو جہد کیا ہے اس ملک میں جمہوریت کے لیے، اس ملک میں جمہوریت کا بنیاد رکھا، اس ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے جدوجہد کی، اور جی بالکل چارٹر آف ڈیموکریسی کا مقصد یہ تھا کہ جمہوری پارلیمان کو اپنا مدت پورا کرنا چاہیے، اور خواہش یہ تھا کہ وزراء اعظم کو بھی اپنی مدت پورا کرنا چاہیے۔ خان صاحب ہمارا چارٹر آف ڈیموکریسی پہ یقین نہیں رکھتے۔ خان صاحب نے وہ جو ٹرانزیشن ٹورڈز ڈیموکریسی، جو پاکستان کے عوام کی قربانی، پاکستان پیپلز پارٹی کے قیادت سے لے کے کارکن تک کی قربانی کے نتیجہ میں ہم نے جمہوریت کو بحال کیا، اور جمہوریت کا ٹرانزیشن شروع کیا۔ 2 قدم آگے 1 قدم پیچھے، لیکن پاکستان کا سفر جمہوریت کی طرف تھا۔ اب خان صاحب کی حکومت آنے کے بعد، دھاندلی زدہ حکومت منتخب ہونے کے بعد، ہم جمہوریت کی طرف نہیں آمریت کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، ہم اتھارٹیرینزم کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ کا میڈیا کا آواز دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارا آزاد عدلیہ کی پر کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے عوام کے حقوق کو دبائے جا رہے ہیں، اور جو معاشی پروگرام IMF کے ساتھ طے ہوا ہے وہ ہمارے عوام کے اور ملک کے معیشت کے خلاف ہے۔ اس لیے ہم اتنا سخت قدم اٹھانے جا رہے ہیں، اور ہم ہر آپشن استعمال کرنے کو تیار ہیں اس نالائق، ناجائز اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کے لیے۔ اگر خان صاحب کے پاس میجورٹی ہے، اگر پارلیمان کا اکثریت اس کے پاس ہے، تو پھر وہ رہے گا اور اس کا مدت پورا ہو جائے گا۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ خان صاحب کے پاس ایوان کا اکثریت نہیں ہے،
ज़बरदस्ती कुछ सियासी जमातों के साथ जोड़ा गया है, और हम चाहते हैं कि हम जमहूरी ऑप्शन इस्तेमाल करके पार्लियामान में ये सियासी हमला खान साहब और सिलेक्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ करें। अगर हम ये अदम एतमाद लेकर आते हैं तो पाकिस्तान के अवाम को नज़र आएगा कि कौन अवाम के साथ खड़े हैं और कौन खान साहब के साथ खड़े हैं। सर, आजकल खबरें चल रही हैं कि पंजाब की दो जमातों के दरमियान अगली हुकूमत में इक़्तिदार की तकसीम का फार्मूला तय हो रहा है। पंजाब और मरकज़ दोनों जगह आपकी पोजीशन कमज़ोर है, तो वफाकी हुकूमत गिराकर आपको क्या मिलेगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मैं ये जदोजहद की मार्च अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के अवाम के लिए कर रहे हैं। और आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि शॉर्ट टर्म में जो हुकूमत के फ़ायदे हैं, चाहे वो वफाक में हो या पंजाब में हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो नहीं मिलेगा। लेकिन हमारा मुतालबा ये है, हम चाहते ये हैं कि हम साफ़ और शफाफ और जल्द से जल्द इलेक्शंस करवाया जाए। जो इंटरम वक्त में एक छोटी टाइम की हुकूमतें बनेंगे, उनका लिमिटेड मैंडेट होगा। उनका मैंडेट ये होगा कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें और आगे साफ़ और शफाफ इलेक्शंस की तरफ हम भरे। इंशाअल्लाह ताला साफ़ और शफाफ इलेक्शंस होंगे, किसी को एक फ्रेश मैंडेट मिलेगा, अवाम की तरफ से मैंडेट जो होता है वो लेजिटिमेसी दिलवाता है, और फिर वो हुकूमत उस पोजीशन में होगा कि वो मुल्क का मुआशी मसाइल, मुल्क के सियासी मसाइल, मुल्क के मुख्तलिफ मसाइल का हल निकाल सकते हैं। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी पोजीशन है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पोजीशन दिन ब दिन में इजाफा हो रहा है। जिस भी बाई इलेक्शन में हमने हिस्सा लिया है, पिछले इलेक्शन से हम बहुत आगे चले गए हैं, और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह जैसे साफ़ और शफाफ इलेक्शंस होते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इलेक्टोरल पोजीशन है वो माजी से बेहतर होगा। हम मुसलसल जदोजहद कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम को नज़र आ रहा है कि अगर कोई जमात पहले दिन से लेकर आज तक इस सिलेक्टेड के ख़िलाफ़ जदोजहद कर रहे हैं, मुआशी और अवाम के इशूज़ पे जदोजहद कर रहे हैं, जो जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, जिन्होंने अपने दौर में अवाम के, चाहे वो महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, गुरबत के इश्यूज़ हो, उनको एड्रेस किए हैं। इंशाअल्लाह ताला इस बुनियाद पे, हमारा मंशूर की बुनियाद पे, हमारा नज़रिया की बुनियाद पे वो हमें वोट देंगे। ये तस्वुर है कि जो बड़ी सियासी तहरीकें होती है उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट का कहीं ना कहीं हाथ होता है, तो क्या आपको भी कोई इशारा मिला है? पाकिस्तान की तारीख़ में जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल है वो तो हमारा तारीख़ का हिस्सा है, लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोल है वो भी हमारा तारीख़ का हिस्सा है। और ये आज से नहीं, हम हर दौर में तहरीक चलाते हैं। कायदे अवाम ने चलाए, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने एक नहीं 2 दफ़ा आमरीत के ख़िलाफ़ जदोजहद की तहरीक चलाए। आज हम अपने वक्त के हुकूमत के ख़िलाफ़, अपने वक्त के ज़ालिम के ख़िलाफ़, अपने वक्त के आमिराना क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ जदोजहद कर रहे हैं। ना हमने माजी पे किसी के इशारे पे चले हैं, ना हम आज किसी के इशारे पे चले हैं, बल्कि हम जो जदोजहद कर रहे हैं वो इस चीज़ की जदोजहद कर रहे हैं कि हर इदारा को अपने जो आइनी और कानूनी मैंडेट है उसके मुताबिक चलना चाहिए। हम नहीं समझते हैं कि ये एक दिन का जदोजहद है जिसमें हम एक दिन में कामयाब हो जाएंगे। ये एक तसलसल है, ये हमारा सियासी ज़िंदगी का मकसद है, हमारा मंशूर का, हमारा नज़रिया का मकसद है। इंशाअल्लाह ताला लॉन्ग टर्म में हम उस मेहनत में, उस काम में भी कामयाब होंगे। लेकिन इस वक्त जो इस मुल्क के लिए ज़रूरत है कि ये वज़ीर आज़म जिसने अवाम को झूठ बोला है, जिसका हर वादा धोखा निकला है, जिसने हर इदारा को इस्तेमाल किया है, मुतनाज़ा बनाया है, उसके ख़िलाफ़ हम एक 1 पॉइंट एजेंडा पे सब आ जाए। इसके ख़िलाफ़ हम अदम एतमाद लेकर आएँ, और बाकी फिर जो इम्प्रूवमेंट्स हम चाहते हैं पाकिस्तान के मुआशरे में, पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान में, उसके लिए भी हम जद्दोजहद करते रहेंगे। सर, आपने कहा था अगर इमरान खान इस्तीफ़ा दे दे तो आप फौरी तौर पर लॉन्ग मार्च ख़त्म कर देंगे। क्या आपको उम्मीद है कि वो इस्तीफ़ा दे देंगे? आप मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का रेफ़र कर रहे होंगे, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ज़िक्र वज़ीर आज़म के अपने अल्फाज का किया था। खान साहब जब अपोजिशन में था और वो ख़ुद अपने जद्दोजहद कर रहा था हुकूमत के ख़िलाफ़, तो वो अक्सर कहता था कि अगर वो वज़ीर आज़म होता और 50 लोग जमा करके उसका इस्तीफ़ा का मुतालबा करते तो वो अपना इस्तीफ़ा दे देता। तो मैं उसकी अपनी बात का याद
दिलवा रहा हूँ। आज आपने हमारा कराची का जो लॉन्ग मार्च का इब्तिदा था उसको देखा होगा और कराची के अवाम एक बड़ा तादाद में बाहर आए खान साहब के ख़िलाफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक़ में। तो अगर खान साहब अपने बात पे कायम है तो ख़ुद ब खुद इस्तीफ़ा देना चाहिए। हम उम्मीद नहीं रखते हैं, कोई उम्मीद नहीं रखते हैं खान साहब से। हम खुद अपना जद्दोजहद कर रहे हैं, अवाम के पास जा रहे हैं, शहर शहर जा रहे हैं। अवाम का जो राय है वो दुनिया के सामने हम रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमारा मेहनत जारी है कि हम पार्लियामान में भी इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एक्शन ले सकें। अपने आप को कब तक वज़ीर आज़म बनता देख रहे हैं? अभी तक हमारा जो प्रायोरिटी है इस वक्त का जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेहनत है वो इसलिए नहीं है कि हम अपने लिए जद्दोजहद करें या अपना कोई ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। बिल्कुल हम ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिलती है, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के मुताबिक और नज़रिया के मुताबिक हमारा मईशत और हमारा मुल्क चलता है तो हम अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं। मगर जो इस वक्त हमारा फोकस है वो सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेजने का, वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवाने का, वो साफ़ व शफाफ इलेक्शंस करवाने का। और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद ये है कि जब हम वो साफ़ व शफाफ इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी और हुकूमत बनाएगी। बिलावल, अगर सेंट्रल पंजाब पहुंचते हैं और वहां पर लॉन्ग मार्च में एक नारा लगता है कि धरना और इमरान हटाओ, तो बिलावल आवाम के जम्मे गफीर के किस नारे पर फौरी तौर पर अमल करेंगे? हम तो हमारे कारकुन के साथ चल रहे हैं। कराची से हम पंजाब में दाखिल होंगे तकरीबन 3 मार्च पे और आगे बढ़ते हुए हम सेंट्रल पंजाब से होते हुए GT रोड पे सफ़र करते हुए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी एहतजाज पे यकीन रखते हैं और हम अपने अवाम को, अपने कारकुन को इस बात पे कायल करने की कोशिश करेंगे कि कोई गैर जमहूरी कदम नहीं, जमहूरी कदम अपनाना है, खान को हटाना है।